We are once again together, my dear students, to learn some more concepts and principles of management. कुछ याद है हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था? कौन सा कॉन्सेप्ट लर्न किया? किस प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे? मैंने आपसे ये जिक्र किया था और अर्ज की थी कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर यू एंड फॉर मी, for every person working together, regardless he or she is working in the office, regardless he or she is interacting in the classroom, regardless whether he or she is working in the public office, in the market, in hospitals, no matter what organization you are in. In fact, sometimes ineffective communication skill leads to problem. You get angry that the other person does not understand your message. You get irritated and your body language tells me you're feeling unhappy. जरा रुक के अपने आप से भी सवाल कीजिए कि ये शख्स, ये कस्टमर, ये क्लाइंट, ये मेरा कुलीग जो मेरी बात को समझ नहीं रहा, तो इसमें कुछ मेरा भी कसूर है? How I am putting my message together, how I am putting my idea together, what kind of language, what kind of words, यकीन कीजिए अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का सिलेक्शन, it can turn off people, it can turn on people. ये ऑन और ऑफ इंसानों के लिए खास तौर पर, ये कोई डिजिटल स्विच तो नहीं है कि आपने बिजली का स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन हो गया, ऑफ किया तो पता चला लाइट चली गई. इंसानों की दुनिया के अंदर स्विच ऑन भी होता है, फिर भी ऑफ नजर आता है. क्लास में बैठे भी होते हैं, फिर भी बात सुन नहीं रहे होते. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. इसलिए असर रखती है कि someone to whom you're talking, you're using the kind of message, you're using the kind of media, you're sending it in a way that you like him, you want to involve him, you want to seek his help, you want to formally make him part of your goal. Through them, with them. Remember, if you want to be with them, use the language which they understand. If you want to get the work done through them, अब वो आपकी बात ही नहीं समझेंगे, वो आपके मैसेज को क्या फॉलो करेंगे. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल, मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं कि इट शुड बी इन इंग्लिश. इंग्लिश हम इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. इंग्लिश इज ए लैंग्वेज of international communication. Many countries around the world, many people around the world, they expect that you will speak in English. English से ज्यादा, my dear students, ये important है कि आपका message, is it understood by the people, by the person you are dealing with, you are interacting with? तो language वो use कीजिए, language के वो अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, message को कुछ इस तरह से प्रेजेंट कीजिए, कुछ इस तरह से पैकेज कीजिए कि सुनने वाले के रिसीविंग एंड पर ये हैवी ना हो. इट कैन इजीली गो थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द रिसीविंग पर्सन. इट कैन इजीली गो थ्रू एंड हिट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसर ऑफ द रिसीविंग पर्सन. एंड इट शुड बी पैकेज्ड इन अ वे, इट शुड बी एनकोडेड इन अ वे that when it is received by me, if you are the sender, if it is received by you, if I am the sender, that you move your head, you give a smile, you show me through your body language, you tell me
you write me, you give me feedback that yes, I understood, I am part of you, I'm with you, I'll help you, I'll buy your idea, I'll buy your lesson, I'll buy your command, I'll buy your product, I'll buy your service, and I'll pay you the price. In terms of dollar, in terms of time, in terms of attention, in terms of commitment, in terms of loyalty, in terms of dedication, you expect. But this will only happen, my dear student, if the message is understood loud and clear. इसीलिए आपने सुना होगा कि जब एक जहाज किसी एयरपोर्ट की डोमेन में आता है तो एयरपोर्ट कंट्रोलर उससे ये पूछता है, कैन यू लिसन मी, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर. इसलिए कि जो शख्स उस जहाज का कैप्टन है, 200 या 300 लोग उसके डिस्पोजल पर हैं, और अगर कम्युनिकेशन में, मैसेज में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, किस एंगल से उतरना है, किस रनवे पर उतरना है, द कॉस्ट इज वेरी हाई. सो कम्युनिकेशन स्किल very important. Loud and clear. People should be moved, energized, activated. They will buy your idea. They will pay you the price. They are happy. You are happy. तो पिछले सेशन में फिर हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस को लर्न किया. पिछले सेशन में फिर हमने ये कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो कुछ मैनेजर करता है वो कम्युनिकेशन के अलावा कुछ नहीं है. अगर वो प्लानिंग भी कर रहा है तो वो लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बेहतरीन प्लान बना रहा है. डिसीजन मेकिंग इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, you must communicate what structure you are going to place, how you are going to arrange the machinery and technology, what process is going to be used, and the most important, do people feel motivated? Do people would like to take you as a leader, that when they receive your message, they would like to give in your command? You will be an excellent commander. You will be a best leader, and people will follow you, people will understand you. इस स्लाइड को जरा गौर से देखिएगा कि आप जब लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप जब ये समझते हैं कि वो आपकी बात को सुने, एक्सेप्ट करें, मूव करें, रिजल्ट्स लेकर आएं, तो फिर किस चैनल को, किस मीडिया को यूज करेंगे आप? नंबर 1, फेस टू फेस. I know it's difficult. I know it is more time consuming, but that is the highest in information richness. Immediately I put my message, immediately I get my feedback. Immediately I see your body language, whether you accept my idea or not. Immediately I will learn from you whether you have given me your commitment, dedication, loyalty. Second information channel, in terms of richness, is telephone conversation. You pick up the phone, you call someone, and even with the tone and the voice of the person, even the way he or she talks to you, you can get a message that is it, in terms of information, high or not high, accepted or not accepted, the message is understood or not understood. Then comes written letters, memos, those newsletters which are written in the companies. In terms of information richness, it's moderate. Some will understand fully, some may not understand, some will follow, some may not. So information richness is moderate. Here comes the formal written documents. You don't address them, you put them on a bulletin board. Reports written by the companies for a general consumption of people. So in terms of information richness, there is some unclarity, there is some ambiguity. In terms of truthfulness of the information, richness of the information, it's low. And the last comes the formal numeric documents. Those printouts,
those budget reports, number ही number. आपने देखा होगा ना कभी statistical survey of Pakistan, number ही number. In terms of information richness, very low. हाँ, जो statistician हैं वो तो नंबर देखकर, जो accountant हैं वो नंबर देखकर, जो financial analyst हैं वो नंबर देखकर फौरन समझ जाएंगे what is being said and what is being asked. लेकिन देखिए कंपनी में कितने लोग हैं जो उस बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं, पब्लिक में कितने लोग हैं, बल्कि कहने दीजिए मुझे कि स्टैटिस्टिकल सर्वे के डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जो उस सर्वे को समझते हैं. सर्वे में भी डेमोग्राफिक बेस्ड, एज बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड, बट whatever those numbers are, sometimes people don't understand. So in terms of information richness, you have to make sure what media, what channel are you going to use, that in terms of information, people receive that information and immediately they give you response. All right, so then are you going to speak with them? Are you going to communicate with them verbally or non-verbally? Verbal means, are you going to write? Are you going to speak? Use of words to communicate. That's a very normal way of communication, verbal communication. But there is also non-verbal communication. And believe me, sometimes non-verbal communication communicate better than the verbal. वो जब आंखों आंखों में कुछ कह जाते हैं आप, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही होती है, the way you move, the way you talk. Remember I gave you the example of the language of the babies? That's a non-verbal communication. I think you should become proficient in learning how to speak, how to communicate non-verbally as well. Communication by means of elements, those characteristics which are non-verbal. Body language, gestures, postures, movements, and your behaviors, which are not coded into words. जब आप सर हिला रहे होते हैं ना, उसका मतलब आप कह रहे होते हैं yes, I'm with you, I'm with you. जब जापानी जो है वो अपने आप को बो करता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, yes, I understood, I follow you, I take you as my leader. It's non-verbal communication. So see how you can learn verbal as well as non-verbal. So let's learn then, in speaking of formal communication, what are the communication channels available to us and how we do it. So these are the pattern of communication and in fact the communication flow. Pattern of communication flow through which managers and other organization members, they would like to speak, they would like to send, they would like to receive the information. इसमें फिर हम डिस्कस करते हैं, is it a vertical communication? Is it horizontal communication? Or is it informal communication? यानी गोया vertical and horizontal communication channel is formal. People use it, managers use it formally in the organizations. We will also see what are the informal communication channel जो बन जाते हैं, बनाए नहीं जाते, जो होते हैं, बाज़-औक़ात हम उनका इनकार भी करते हैं, लेकिन मैसेज तो उनमें से आ रहा होता है, फीडबैक भी मिल रहा होता है. आइए फिर हम उसको देखते हैं. पहले वर्बल, फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और फिर कुछ देखेंगे इनफॉर्मल. वर्बल कम्युनिकेशन में और वर्टिकल कम्युनिकेशन में, दोनों के पर्सपेक्टिव के अंदर, लेट्स लुक एट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड का मतलब, और ये लफ्ज आपको बता रहा है, somebody at the top giving a message, writing a memo, writing a letter to someone, the one below, downward. So it's from the top to the bottom. So downward means you're talking of top to bottom communication. This means managers, most of the time, the one at the top, he will send a message, and this style of communication, this channel of communication, my dear students, mostly it's overused. So how it is overused?
because everyone at the top will simply write a letter, memo, order, command, and send it to the one below. And he or she will understand my message will be taken. So this approach from top to bottom is a downward communication. But remember, in this downward communication, people do use filter. Sometimes intentionally, deliberate, sometimes accidental. Filter. Filter ये क्या होते हैं? जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं आ रही होती, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि 100% इंफॉर्मेशन which begins its journey from the top, passing through 6 or 7 layers of hierarchy, maybe when it reaches at the bottom level to the security guard or to the crew member or to the skilled worker, only 20% is understood. जो बात वहां से चली थी वो पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हो गई. इसलिए हम ये कहते हैं this is an overused method of communication, downward communication, top to bottom communication. Upward communication, it's bottom up. People use it for feedback. Managers, they would like to see it in terms of feedback. But this can be distorted by only favorable message going up. कि feedback जो है वही जाए कि सब अच्छा है. ये जो सब अच्छा की रिपोर्ट है ना, ये तो favorable message हो गया. लेकिन डिपेंड करता है कि the people at the top, what would they like to hear? Would they like to hear the right and the truth? The truth and the only truth? Then they have to make sure that this is a kind of trust environment. That bottom-up approach. Generally देखिए, जब आप one below की बात सुन रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं. वरना अमूमन तो ये तसव्वुर होता है कि जो मेरे मातहत है, वो तो है ही मेरा मातहत, वो मुझे क्या मशवरा देगा. तो जब आप उसके मशवरे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, तो फिर मशवरा देने वाला भी बस कहता है साहब सब बिल्कुल ठीक है, सब तरफ काम हो रहा, हाँ जी बिल्कुल काम हो रहा है, सब काम हो गए जी, बिल्कुल ठीक हो गए. इसलिए उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना. The one at the bottom is not responsible. Responsible is the one at the top. But if you ask for a true information in the form of a feedback, then they will give you the real report. So upward communication का मतलब ये है कि you have to make sure that the people are trustworthy. They would like to see that you give their feedback active listening, importance. इसलिए आप नोट कीजिएगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आइडिया ऑफ द वीक, उस आदमी का नाम और पिक्चर अनाउंस की जाती है, डिस्प्ले की जाती है कि ये फ्रंट लाइन ऑफिसर था, ये सिक्योरिटी गार्ड था, ये माली था, इसने एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी, एक ऐसा फीडबैक दिया कि जिसने कंपनी के गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प की. वी अप्रिशिएट हिम. और इस हफ्ते के अंदर 200 लोगों में से काम करते हुए इस शख्स ने बेहतरीन फीडबैक दिया, बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी, उसका नाम बुलेटिन बोर्ड पर, उसकी तस्वीर बुलेटिन बोर्ड पर, या बाज़-औक़ात उसको आइडिया ऑफ द वीक डिक्लेयर करके कुछ टेंजिबल रिवॉर्ड भी दिया जाता है. हां, अगर यह किया जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए, देन द फीडबैक विल बी एक्यूरेट. एंड आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड, एंड इट्स एन एनकरेजमेंट from the top management to the people who are below. The question is, does the managers encourage upward flow? Transactional managers, conventional managers, traditional managers, they don't. Innovative managers, professional managers, transformational managers, they would like to listen from each and every team member. They would like to see and get the feedback from all of them because they feel in teamwork everyone is important. Horizontal communication discuss करने से पहले मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि देखिए, आपने बैचलर डिग्री हासिल की, आपकी तनख्वाह मुख्तलिफ होगी उस शख्स से जिसने सिर्फ मैट्रिक या इंटर तक तालीम हासिल की. वो आपका मातहत होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने में
तो शायद आपको उसकी मदद दरकार होगी, यू नीड हिज हेल्प। तो उसने मैट्रिक किया, उसको मैट्रिक वाली सैलरी मिल रही है। आपने बीए बीएससी की, आपको वो सैलरी मिल रही है। पीएचडी वाले को वो सैलरी मिल रही है। बट एज फार एज द इंपॉर्टेंस टू अटेनमेंट ऑफ द गोल इज कंसर्न, आई थिंक ईच वन इज इंपॉर्टेंट। डिपेंड करता है आपका माइंड सेट क्या है, हाउ वुड यू लाइक टू लिसन टू हिम। लेकिन नेचुरली इफ यू एनकरेज देम by listening to their ideas, if you encourage them that they'll give you the truth feedback, the true feedback, then they will be encouraged, and I think the decision making will be good, performance of the company and the department will be good. Formal communication के अंदर दूसरा और तीसरा मेथड जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, यानी वर्टिकल के पर्सपेक्टिव में ये हॉरिजेंटल है, लेकिन वर्टिकल में हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड दो चैनल्स देखे। अब ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन तीसरा चैनल है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मीन्स यू स्पीक टू योर कोलीग्स, इट्स लैटरल, इट कुड बी डायगोनल, पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे स्पीक टू ईच अदर, दे एक्सचेंज विद इन वर्क यूनिट, वन वर्क यूनिट, और it could be involving colleagues and peers outside the work unit at the same level. It could be among the people working under one supervisor and one manager. There are various ways that this horizontal communication is there. हाँ, बाजुकात ऐसा भी हो जाता है कि 3 डिफरेंट मैनेजर्स को रिपोर्ट करने वाले लोग एक लेवल के आपस में मिलकर एक दूसरे को डायगोनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मार्केटिंग वाले क्वालिटी और प्रोडक्शन को, फाइनेंस वाले, अकाउंटिंग वाले इन्वेंट्री वालों के साथ, स्टॉक वालों के साथ, डिलीवरी वालों के साथ, दे एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन एट द इक्वल लेवल, एट द लेटरल लेवल, एट द डायगोनल लेवल इज इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक पीपल डू टॉक, दे सीक हेल्प, they would like to work with them, they would like to communicate with them, and this is very important. अच्छा, आइए साहब, तो फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं। This is communication which takes place without regard to hierarchy or without regard to task requirement. Maybe very close to the cooler, water cooler, maybe in the cafeteria, maybe while walking in the corridor, in the office, in the building. Informally, you are communicating with people. अच्छा देखिए, जब कॉरिडोर में चल रहे हैं या चाय के कप टेबल पे कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, वहां फैक्ट्री मैनेजर भी हो सकता है, वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वहां एक सुपरवाइजर भी हो सकता है। सो सिटिंग देयर ऑन द टेबल, दैट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन इसका कोई फायदा है? बिल्कुल फायदे हैं। फायदा क्या है? सर्टेनली इट्स अ टूल फॉर कंटिन्यूएशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ कल्चर। कल्चर क्या है? एक कल्चर तो ये हो सकता है कि ऑफिसर्स का बेस अलग, नॉन ऑफिसर्स का अलग, ये भी एक कल्चर है। एक कल्चर ये भी हो सकता है कि एक ही कैफेटेरिया है, एक ही जगह है, जब सब लोग कतार में पैसे पे करके या पे करने से पहले बारी बारी अपना खाना लेंगे। ऐसी कंपनीज भी मैंने देखी हैं कि जिसमें एक ही कैफेटेरिया होता है, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, सुपरवाइजर, सबको एक ही खाना मिलता है। ऐसी भी कंपनीज हैं कि जहां वर्कर्स के लिए अलग कैंटीन है, मैनेजर्स के लिए एक अलग कैफेटेरिया है। हम किसी को गलत या सही नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये कल्चर बता रहा होता है इनफॉर्मली कि यहां एक ही तरह के टॉयलेट्स और बाथरूम है सबके लिए, या यहां ऑफिसर्स के लिए अलग, वर्कर्स के लिए अलग, डिपेंड करता है। बट दिस इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिपेंड करता है कि अब आप इस कल्चर से इनफॉर्मली क्या मैसेज लेते हैं। हां, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए कि इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल में फिर गपशप,
गॉसिप्स, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन भी सामने आती, रूमर्स। और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि बाज़ औक़ात रूमर्स के डेवलप करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन किया जाता है, ताकि किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से पहले लोगों को फीडबैक सामने आ जाए। अच्छा भाई, हम सैलरी कट करने लगे, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, हम फलां फैसला करने लगे, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, स्टाफ क्या कहता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मल चैनल से। What are the different networks which are available to you, which you can use for communication? Is it a command and chain of command type of channel? One is talking to the one below, someone at the top, speaking to the one below, to the one below, to the one below. Chain. Or is it one person in the center talking to 4 people in his group? X, Y, Z, the one behind. Or what kind of structure to communication channel you have given that one person is talking to the people in the circle. क्वालिटी सर्कल का हमने नाम लिया था ग्रुप्स की जब डिस्कशन कर रहे थे। यू सिट इन अ सर्कल। जब आप सर्कल में बैठे हुए हैं तो ऐसे लगता है कि सब बराबर हैं। जब आप लाइन में खड़े हैं तो जो सबसे आगे जिसको आपने खड़ा किया है शायद वो उस टीम का लीडर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेटवर्क्स होते हैं, स्टार नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इसके स्ट्रक्चर यूज कीजिए। बस नेटवर्क्स, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो जिसको आप वहां रिंग कह रहे हैं, आईटी के स्टूडेंट, जिसको आप वहां रिंग कह रहे हैं, हम मैनेजमेंट में उसको सर्कल टाइप ऑफ नेटवर्क कह रहे हैं। स्पोक, सी हाउ द पीपल आर टॉकिंग, more than one channel, they are networked to each other, but this is a kind of spoke model. Many airline companies, they use this kind of model. They call it hub and spoke model. And these are the different networks depending upon the type of organization, depending upon the type of people. You can use any one of them if it helps to raise the performance level of the organization. What are the barriers for effective communication? In other words, what makes your effective communication ineffective? Number one, the person using filtering. मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं, याद है? रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर। लाइट को पास करने के लिए जब आप ब्लैक फिल्टर लगा देते हैं तो सारी की सारी लाइट उस ब्लैक फिल्टर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ देखने वाले को लाइट नजर ही नहीं आती। तो इंसानों की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब मैंने यहां पर ब्लैक फिल्टर लगा दिया है अपने लेफ्ट कान में, अब मुझे जो आवाज भी इधर से आएगी तो मुझे तो उसका पता ही नहीं चलेगा। दिस इज अ बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोशिश कीजिए कि फिल्टर जो है वो वाइट ही रहे, इसलिए कि वाइट फिल्टर में से 100% लाइट गुजरती है, 100% आइडियाज गुजरते हैं। लेट अस टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। दीज आर द फैक्ट्स। देखिए साहब, डाटा ये बता रहा है, यू वांट टू कम्युनिकेट टू समवन कि भाई तुम गायब ऑफिस से, रोजाना 2 घंटे तुम ऑफिस में से गायब रहते हो। सो लेट्स पुट द डाटा। White filter means let the data speaks itself. You show them 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, how the attendance record. Monday, Tuesday, Wednesday, what is the attendance record? ये कैसा फिल्टर होगा? White filter, कि data will be speaking and communicating in the best way possible. Emotions. जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो हकीकत इमोशंस के नीचे दब जाती है। देखिए, डाटा शुड बी प्रेजेंटेड, इंफॉर्मेशन शुड बी देयर,
and let the people make the decision. You should not add your emotion. कि नहीं साहब, ये तो मेरा जानने वाला है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरे डिपार्टमेंट का कुलीग है, ये मेरा ग्राई है. आप इमोशंस ऐड कर रहे हैं. दिस इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ सिलेक्टिवली यू परसीव कि मुझे इसकी बात सुननी है, इसकी नहीं सुननी, मुझे मार्केटिंग वाले की सुननी है, प्रोडक्शन वाले की नहीं सुननी. Selectively you are perceiving. This is again also a barrier in your communication channel. And the last one is the language. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की. Language is also very important. Which language are you using? Is it understood by the people? अगर वो इस लैंग्वेज को समझते ही नहीं, तो या तो फिर आप एक क्रिज्मेटिक लीडर हो, जो मैंने एग्जांपल दी थी कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, लोग फिर भी कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं. और आखिरी पॉइंट जो आपकी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाता है, वो नॉन वर्बल क्यूज हैं. कि आप बातें तो कुछ और कर रहे हैं, बातें तो आप सदाकत की, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है. नॉन वर्बल क्यूज. तो जो कुछ कहा जा रहा है, जब उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का वक्त आएगा, तो मेरा ख्याल है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल एंड द मैसेज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल बिकम इनइफेक्टिव. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की थी, और मैंने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यह भी एक अहम एरिया है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में एक लफ्ज नोट कीजिएगा, ग्रेप वाइन, अंगूरों की बेल. कभी अंगूरों की बेल देखी आपने? आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन. जब वो बेल ग्रो करती है, तो उसकी टहनियां और उसकी शाखें, कुछ पता नहीं होता कि वो किधर से निकल जाएंगी. बिल्कुल वही मकसद है यहां पर, कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. इसके फायदे भी उठाए जाते हैं, बहरहाल इसका नुकसान भी होता है. इट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप किसी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहते हैं, आपने खामोशी से उसको लीक कर दिया, रूमर, गॉसिप्स, एंड सी हाउ पीपल विल रिएक्ट. यू विल गेट द फीडबैक. कुछ नई पॉलिसी आने वाली है साहब, कुछ इंक्रीमेंट्स के अंदर ये चेंज आने वाली है, कुछ ये चीजें विदड्रॉ होने वाली हैं, कुछ पेंशन कम्यूटेशन के अंदर रिडक्शन होने वाली है. मे बी यू वुड लाइक टू सी रिएक्शन बाय सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन, बट इनफॉर्मली. एक और मकसद ये भी हो सकता है कि यू वुड लाइक टू आइडेंटिफाई दोज इश्यूज विच विल एम्प्लॉइज कंसिडर इंपॉर्टेंट. लेकिन देखिए, इससे एंग्जाइटी, परेशानी, डिमोटिवेशन भी पैदा होती है. तो इसके दोनों ही फायदे हैं. और ये इनफॉर्मल नेटवर्क होता है, लोग जानबूझ के करते हैं, हम सब इसका हिस्सा बनते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, और वो राय कोर्ट भी होती है. और बाद में फिर बॉस बैठा पूछ रहा होता है, अच्छा तो फलां जगह पर तुमने खड़े होकर ये बात कही थी, मुझे पता चला. वो कैसे पता चलता है? वो ग्रेप वाइन के थ्रू. दिस ग्रेप वाइन कैन बी यूज टू डिसेमिनेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. लेकिन इसकी फॉर्मेलिटी कोई नहीं होगी. आप इसकी बेस पे किसी को पकड़ नहीं सकते. हां, अलबत्ता अगर आप टेप रिकॉर्डर लेकर किसी की बात को टेप कर लें, वो अलग बात है. अदरवाइज ग्रेप वाइन का मकसद ही होता है कि इट इज एन इनफॉर्मल नेटवर्क. अच्छा देखिए, आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है कि दिस कैन नॉट बी अबॉलिश्ड. इसलिए कि ये होती है. आप ये चाहें कि कोई आदमी इनफॉर्मली कंपनी के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, रूल्स के बारे में बात ना करे, मुमकिन नहीं है. तो इसलिए जब ये अबॉलिश नहीं की जा सकती ग्रेप वाइन, ये नेटवर्क होता है, तो फिर क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसको पॉजिटिवली यूज किया जाए. हम इसलिए कहते हैं कि इसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूमर्स कैन नेवर बी एलिमिनेटेड एंटायरली. आई होप यू एग्री विद मी. अफवाहें, देखिए अफवाह जो है वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन. और बाज़ औक़ात हम उस अफवाह पर पूरे यकीन के साथ बिलीव कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो तो है ही अफवाह.
तो अगर आप अफवाह पर कान धरेंगे, कान धरना एक्टिव लिसनिंग, अगर आप उस पर कान धरेंगे तो मे बी इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग, एंड इफ यू मेक डिसीजन ऑन दैट बेसिस इट मे नॉट बी यूजफुल. व्हाट कुड बी द बैरियर्स एट द इंडिविजुअल लेवल टू योर कम्युनिकेशन? These barriers could be that there could be some conflicting or inconsistent cues, signals, इशारे. लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं आप. आप कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, और मैं जब बिल्डिंग को देखने गया तो पता चला बिल्डिंग की तो अभी सिर्फ छत पड़ी है, बिजली की वायरिंग हुई है, फर्श डले हैं, अभी तो बहुत सारा काम होना बाकी है. तो कह कुछ और रहे हैं आप, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है. कंफ्लिक्टिंग व्यूज, दिस इज अ बैरियर. टॉप मैनेजमेंट इज टॉकिंग समथिंग विच डज नॉट मैच विद द ग्राउंड रियलिटी. क्रेडिबिलिटी अबाउट द पर्सन. यस यार, ये बंदा जब भी बात करता है गलत बात करता है, इसकी बात को बस दो पे तकसीम कर दीजिए. That's a barrier. A manager should become credible. कि हां, जब भी ये बात करेगा ये क्रेडिबल होगी. अगर वो बात क्रेडिबल नहीं है, अगर वो मैनेजर मैन ऑफ इंटेग्रिटी नहीं है, तो ये एक बैरियर होगा उसके कम्युनिकेशन में. आपने वो सुना होगा ना, शेर आया, हालांकि आता तो नहीं था, और एक दिन वाकई शेर आ गया तो लोगों ने उसकी बात पे कान ही नहीं धरे. शेर आया और अपना काम करके चला गया. इट्स अ बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. रिलक्टेंस टू कम्युनिकेट. इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल, दे डोंट वांट टू टॉक, दे आर वेरी डिफिकल्ट दैट दे विल स्पीक आउट. तो जो आदमी बोलेगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं ये कहता हूं कि फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. पुअर लिसनिंग स्किल्स, दूसरे की बात को सुनने का हौसला, दूसरे की बात को सब्र के साथ सुना जाए. और अगर ये लिसनिंग स्किल पुअर हैं, तो जैसे किसी ने गुफ्तगू हां साहब मुझे समझ में आ गई, अब जब बात पूरी नहीं हुई तो फिर समझ में कैसे आएगी? और जो कंप्लीट नहीं हुई उसकी बेस पर अगर आप कुछ डिसीजन करेंगे, बहरहाल वो फिर डिसीजन गलत भी हो सकता है. और आखिरी बात जो इंडिविजुअल बैरियर के तौर पर सामने आ रही है, इंडिविजुअल लेवल पर प्रीडिस्पोजिशन अबाउट द सब्जेक्ट. आपने उस शख्स के बारे में, उस कस्टमर के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में पहले से फैसला कर लिया है. उसकी फोन कॉल आई, अच्छा तो बस ये कंप्लेनिंग ही करेगा. मीटिंग के लिए बुलाया, अच्छा तो ये मेरी खिंचाई ही करेगा. प्रीडिस्पोजिशन, इसको ना होने दीजिए. लेट अस सी द फैक्ट्स, सीड ऑन द truthfulness of the information, put a white filter, do not create any barrier. I think your decision making will be good. Organizational barrier क्या हो सकते हैं communication के लिए? Well, the very first thing is status and power difference. The one at the top, he speaks in a language, and the body language and the verbal language and the documents and the memos which people sometimes have difficulty to understand. So that will be a barrier कि लोग जब समझ ही नहीं रहे होंगे. पावर डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप फेस टू फेस बात ही नहीं करना चाहते, हमेशा मीमोज का सहारा लेते हैं. मीमो होने चाहिए, लेकिन कभी फोन उठा के फेस टू फेस गुफ्तगू भी होनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हां आप मेरे बॉस तो हैं, मैं आपका कहा मानने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी सलाहियतें आपको देने के लिए तैयार हूं, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे भी तो आप कुछ इंपॉर्टेंस दीजिए. डिफरेंट परसेप्शंस. आई एम इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट, आई हैव अ परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि ये हमेशा गलत काम करते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं. So there will be a conflict between quality and production. इसी तरह से प्रोडक्शन और डिजाइन, वहां भी बाज़ औक़ात ये डिफरेंट परसेप्शंस होती हैं. नॉइज लेवल. अच्छा देखिए, नॉइज लेवल
जब शोर ज्यादा होगा तो खुद ब खुद कम्युनिकेशन में बैरियर तो आएगा, बात समझ में नहीं आएगी। ये नॉइज जो है कुछ पर्सनैलिटी की वजह से भी हो सकता है, ये नॉइज बाज़-औक़ात डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, इसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन नॉइज को कम करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं, आप मेरी बात समझ सकें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नॉइज जो है बैरियर के तौर पर सामने ना आए। आखिरी बात जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के तौर पर कम्युनिकेशन में हमारे सामने आती है वो है ओवरलोड। इतनी इंफॉर्मेशन, इतना कुछ कहा जा रहा है कि मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। जैसे इंटरनेट पर हम बात कहते हैं इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, एक पेज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पांचवां, पांचवें से 100वां, टू मच इंफॉर्मेशन। Well, let's try to be selective, focused, directed, so that the message is heard loud and clear. So how can we improve our communication skills, my dear students? How can we make it effective? Number one, two-way communication. I listen to you, I'm watching you, you listen to me. We give the continuous, consistent feedback. Be aware of the language and the meaning. Red color may be a sign of encouragement in one culture, but red color could also be a sign of danger in another culture. हाँ, व्हाइट कलर सारी दुनिया में, सारे कल्चर्स में साइन ऑफ पीस। तो ऐसा मैसेज, ऐसी लैंग्वेज चूज कीजिए जो सब लोग कंसिस्टेंट मीनिंग के साथ आपके मैसेज को समझ सकें। यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल by picking up those words, those messages, by making it short that people listen to it, absorb it, feel it good, act upon it, and feel encouraged, feel motivated. Of course, when receiver जो है आपको feedback दे रहा है, be responsive. मैंने कहा था ना, idea of the week, person of the week, that is your response. कि हाँ भाई, आपने जो कहा हमने उसको अप्रिशिएट किया. डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स. सब्र के साथ, पेशेंस के साथ दूसरों की बात को सुनिए. बल्कि जब सुनने की बात हो रही है, जरा ये टिप के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब दूसरा शख्स गुफ्तगू कर रहा हो, अगर आप फौरन डायरी निकालकर उसकी गुफ्तगू के चंद सिलेक्टेड पॉइंट्स लिख लें, तो इमीडिएटली उसको मैसेज आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने डायरी में लिख लिया है. बाद में आप वो डायरी देखें ना देखें वो एक अलग बात है, लेकिन मैसेज तो फौरन चला गया कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. बट ऑफ कोर्स यू विल सी द डायरी मे बी अ वीक आफ्टर और मे बी अ मंथ आफ्टर एंड यू विल टेक एक्शन. बट द रिस्पॉन्स, द फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस हैज बीन गिवन बैक इमीडिएटली. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आपको क्या करना है? नंबर 1, फॉलो अप. आपने मीमो लिखा, टेलीफोन कीजिए. हां भाई, मैसेज मिल गया, परसों सुबह 10 बजे इस पर्टिकुलर इश्यू पर यह डायलॉग होगा, ये एजेंडा आइटम्स होंगी. मेक श्योर दैट ही वांट्स टू बी देयर एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट यू फॉलो अप. मे बी यू विल गो फेस टू फेस, visit his office, visit his department, visit his house, follow up. You regulate the information flow. You send the memo, it goes through email, you remind them. You want to make sure that information is consistently flowing to all the concerned departments and the people. और तीसरी बात आ रही है वही जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, बल्कि आज के सेशन में सबसे पहली स्लाइड थी. अंडरस्टैंड द रिचनेस ऑफ द मीडिया. कि ईमेल लिखने से, टेलीफोन कॉल करने से, फेस टू फेस गुफ्तगू करने से 3 चीजें आ गई ना. तो अगर ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है
and you want my contribution, and I want your contribution, speak face to face. ईमेल तो फिर ठीक है, मैं पढ़ूंगा, कोई बहाना भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, शायद मैं आऊं, शायद मैं ना आऊं. But if I want you to be there, make sure that make your information rich by seeking him a meeting face to face, talking him face to face. My dear students, let's then quickly look how the information technology is affecting communication. Very important area. See some technology-based communication channels which are available to you. I think some of them are familiar to you. Email, internet, voicemail, teleconferencing, video conferencing, groupware, software-based group discussion. That's all electronic communication using technology. Let's quickly go through them. Many of them are familiar to you. So you disseminate information more quickly, you provide a chance for collaboration, and all the employees through the computer network are accessible. And every organization is using this information technology and its tools and channels very extensively. Number one, you use network computer systems. All the computers of the company are networked. Internet is an international network of computers. Email is there, which goes through the computers. Instant message, ये जो chatting आप करते हैं, instant message. Voicemail, again using computers. Fax machine, you send the document using electronic communication. Teleconferencing, 5 people using telephone talking to each other. Teleconferencing call. Video conferencing, by using camera and the audio, 5 people in 5 cities sitting together having a meeting electronically. EDI, ये एक नई चीज है, electronic data interchange. This is basically used by the business organization to exchange their documents. The exchange of documents between suppliers, vendors, manufacturers, service providers, wholesalers, retailers, all of them involve value chain. ये नई मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करना शुरू हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनली for many years the organizations have been using this electronic way of communication by sending their transaction documents. Intranet, internet की बजाय intranet. Now this is a network of computers for a particular organization. कि अगर organization की 3 जगह पर लोकेशन है, 3 जगह पर फैक्ट्रीज हैं, उनके 300 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड. So employees can use this technology to share and link the information of the organization. Extranet, same organization, but now you share the information with your customers and suppliers. An organization can have intranet as well as extranet, depending upon the type of involvement this company would like to have from customers. और आखिरी way of communication by network computer system is internet-based voice communication. And this internet-based voice communication means you're allowing users to talk with each other on internet, through internet. It's a very cheap way of talking to people. आज के सेशन की आखिरी स्लाइड, कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम के बाद वायरलेस कैपेबिलिटीज. वायरलेस का जमाना है. ऐसे फिजिकल गैजेट्स, ऐसे मोबाइल गैजेट्स कि जो फिजिकली आपस में कनेक्टेड ना हो. ऑफ कोर्स बाय यूजिंग माइक्रोवेव सिग्नल्स, सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड लाइट्स. आपने देखा होगा कि यू सेंड योर फाइल टू द प्रिंटर थ्रू द इंफ्रारेड. यू यूज योर मोबाइल फोन टू स्पीक एंड टू टॉक. और जापान के मोबाइल फोन्स को देखिए आप, जो 4th जनरेशन में पहुंच गए. All the internet facilities are available on the mobile phone. So organization can also give the mobile phone to their employees
and get the all data sent to the employees and from the employees to the organization through microwave or through satellites to increase the efficiency and the performance of the organization. So communication is important, may it be physical, may be interpersonal, may be through network systems, or may be wireless. My dear students, चैनल कौन सा आप यूज करते हैं, मीडिया किसको इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी किसका इस्तेमाल को लेके आते हैं, वायरलेस लाते हैं, इंटरनेट लेते हैं, इंट्रानेट है या एक्स्ट्रानेट है, पर्पस क्या है, हाउ टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज so that the performance of the organization should be increased. That is the purpose. So that goals of the organization should be achieved, attained, and the organization should stay and sustain in the service of the customers, in the service of the citizen, and people should be happy. That is the purpose of communication. That is a skill which needs to be learned, which needs to be implemented, and which needs to be functioned in a way that all the concerned parties to whom you're talking should be satisfied. I hope you enjoy communication. I hope you improve your communication skill. I hope you remove the barriers. I hope you make communication effective. In the next session, we'll talk about controlling as a function, Polka ka C, controlling. And we will reach at a point that how can we control and what is to be managed and what is to be controlled. We will see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.